Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well in taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Students, we are continuing with the lesson number 3, infinitives, participle and gerunds, in which we learn about infinitives and participle. Now the last topic is gerund. ओके सो आपको पता है कि हमने पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, यू नो अबाउट what are infinitives, where do we use it, what are the places of different places of infinitives. So now we have next topic that is quite related with these two previous topic. So what is the topic? The gerunds. Okay, अच्छा gerunds क्या होते हैं? Gerund is the ing form of a verb that functions the same as a noun. It is called the verbal noun. जेरंड जो है, मैंने आपको याद होगा कि रिमेंबर के जो है, मैं जब व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू पार्टिसिपल, तो मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं सम मेनली एक्ट एज अ वर्ब बट समटाइम एक्ट एज एन एडजेक्टिव एंड नाउन. तो वहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एडजेक्टिव्स बताए थे, वहाँ पर मैंने नाउन को डिस्कस नहीं किया था बिकॉज जब वो आईएनजी फॉर्म व्हेन एक्ट एज अ नाउन तो इट हैज़ सम डिफरेंट नेम, उसका डिफरेंट नेम हो जाता है, दैट्स इट इज कॉल्ड द जेरंड. ठीक है, जो यानी आईएनजी फॉर्म अगर नाउन की तरह एक्ट करने लगे यानी एज अ नाउन बन जाए, ऐसा है वो कि एज अ नेमिंग वर्ड परफॉर्म करने लगे, उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो नेमिंग वर्ड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? इट हैज़ अ डिफरेंट नेम. वी डू नॉट कॉल इट पार्टिसिपल, वी डू नॉट कैटेगराइज इट इन पार्टिसिपल्स. उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए अलग टर्म है, दैट इज कॉल्ड जेरंड्स. ओके, so it is also, that's why it is also called the verbal noun. Why we call it verbal noun? As I told you, looks like a verb लेकिन function working partly as a noun. ये कैसे काम कर रहे हैं कि verb उसकी जो working है वो noun की तरह है but looking like a verb. So that's why it is called the verbal noun. In the example you can see I like cycling. So मैं सेंटेंस को जो एक सिंपल सेंटेंस है, how do I come to know this is a simple sentence? ये कैसे पता चला मुझे कि सिंपल सेंटेंस है? Because there is only one finite verb, there is only one subject, there is only one predicate, there is when we have one finite verb it means that we have one clause. So यहाँ पर what is the subject here? I is the subject and like cycling is the predicate. And what is the finite verb? Like. So what about the what is your opinion about cycling? तो cycling क्या है? ये भी तो verb है. No, it's here in this sentence. It is not a verb. Looks like a verb. It totally looks like a verb, but the functionality of this word is noun. आप देख लीजिए because it gives the answer of what. I like what. So I like cycling. So cycling here it is acting as a noun. So that's why we call cycling in this sentence gerund. Okay, तो ये cycling क्या कहलाएगा? gerund है. इसी तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वर्बल एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. cycling is fun. The next sentence I have not written on the board but I am just telling you cycling is fun. So cycling is fun is a simple sentence. Finite verb is only one subject, one predicate, only one clause here. But what cycling is, cycling यहाँ पर verb नहीं है because it comes at the place of the subject. So that's why it is called it's working as a noun or work as a noun. So that's why we call it gerund. Okay, now come to its usage. इसके usage पे आते हैं. What are the uses of gerund? इसके uses क्या हैं? This I have explained you while we were discussing about infinitives. के infinitives भी जो है जो when we have full infinitive along with to plus base form, तो जब वो as a noun का पढ़ते हैं और जो भी चीज़ noun होती है, this is very important कि जब भी हम कोई चीज़ किसी भी चीज़ को noun कह देते हैं, तो it means that it has two confirmed places तो उसकी होती हैं. तो उसमें एक subject होता है और दूसरा क्या होता है? object होता है. ठीक है, तो बिकॉज जेरंड जो है वो एक्टिंग एज अ नाउन. सो व्हाट आर द यूजेज, इसकी प्लेसेस कहाँ कहाँ है? इट इज़ यूज्ड, फर्स्ट देख लीजिए, इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट वो जेरंड यूज हो सकता है. क्यों यूज हो सकता है? क्योंकि ये आपका क्या होता है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है. सो एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, हमने फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट में भी आपको याद है
हमने 6 फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी थी, जिसमें एक नाउन था, प्रोनाउन था, इन्फिनेटिव था, जेरेंड था, नाउन फ्रेज था, नाउन क्लॉज था। तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि हम ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे और हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये हियर इज द टॉपिक, ये टॉपिक यही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रीडिंग इज फन। रीडिंग जो है वो आपका क्या है, जेरेंड है। क्यों? बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ noun, okay, and what is the verb and is fun is the predicate. In this sentence it comes at the place of the subject. Now the second place of gerund is it is used as an object of a verb. ये किस तरह यूज होता है? object of a verb यूज होता है, वही transitive verb होता है। यहाँ पर transitive, I have forgotten to write transitive. So what is it will be the verb of it will be an object of transitive verb, क्योंकि ये जो है आपके what का या उनका आंसर देगा। I like playing games. So like is what? Like is a verb and like के what क्या like करता है? playing games. So यहाँ पर जो playing है वो क्या है? This is working as a noun, not as a participle. ये participle नहीं है। कभी आप ये समझे कि इसके बाद noun आ रहा है, तो ये क्योंकि games की quality को नहीं बता रहा, games को qualify नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये it is acting as a नाउन के तौर पे काम कर रहा है। और ये किसकी प्लेस पे आ रहा है? इट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, आप ये देख लीजिए एग्जांपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज ऑफ जेरेंड। It is used as an object of preposition. यहाँ मैंने the previous one it was object of a verb, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? We sometimes कि हमारे जो prepositions होते हैं उसके बाद जो phrasal verbs होते हैं उनके बाद हमारे पास अक्सर जो है वो gerund आ जाता है। As you can see in the example, I am tired of waiting. तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि of जो है वो आपका क्या है? वो आपका preposition है, उसके right after the of you have waiting. तो आप याद रखिएगा, कभी कभी ये जो है preposition कभी object बन जाता है, यानी it comes right after the preposition. Okay, the last one is it is used as a complement of a verb. ये कैसे यूज होता है? complement of the verb, मैंने आपको complement का बताया था। complement क्या होता है कि वो it completes the meaning of the sentence, और जो है वो usually comes after the जो complement होते हैं वो is, am, are, was, were, जो ये be words होते हैं इनके होते हैं। इस आप देख लीजिए, my foremost desire is performing hajj। यहाँ पर आपका वर्ब जो है वो is है, और ये किसका जो performing hajj है वो किसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है? it is becoming the complement of the verb का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर perform जो है वो आपका क्या हो जाएगा? it will be the gerund। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लीजिए, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, परफॉर्मिंग के बाद हज आ रहा है तो हज इज़ अ नाउन, तो ये हज को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हज की क्वालिटी नहीं बता रहा। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये हज को क्वालिफाई नहीं कर रहा, और ये एक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पर ये क्या यूज़ होगा? जेरेंड यूज़ होगा, ये एज अ पार्टिसिपल नहीं यूज़ होगा। सो दिस इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ जेरेंड। जेरेंड फिर रिपीट कर देती हूँ कि आईएनजी फॉर्म होती है that works as a noun, जो नाउन की तरह काम करती है, that's why we call it verbal noun। और इसके कुछ यूज हैं, while it is acting as a verbal noun, so that's why it can come at the place of the subject, can be a object of a verb, object of preposition, or a complement of a verb. So now we move to the exercises that are given in the book. So open page number 26, there is a topic gerund. So gerund में जो भी सारी explanation मैंने आपको अभी बताई है, it is almost written here. आप इसको पढ़िए, इसको recapitulate कीजिए, watch the video again and again to understand this term, this topic. Okay, now come to the exercises. What are the exercises? Exercise A, we have point out the gerund in each of the following sentences and say whether it is a subject of a sentence, an object of a verb, complement of a verb, or governed by a preposition. So वही वाली चीज़ के आपको यूज़ बताना है कि कहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, कहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, कहाँ ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। सो लेट्स हैव अ फर्स्ट एग्जांपल। As you can see, there is an example here. I like watching cricket. तो यहाँ पर जो वॉचिंग इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको कैसे कहा है? उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आइडेंटिफाई किया है। तो अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। साइकिलिंग इज़ वेरी इंजॉयबल एक्सरसाइज
तो यहाँ आप देख लीजिए व्हाट साइकिलिंग इज. साइकिलिंग हेयर इज एक्टिंग एज अ noun. इट मीन्स दैट इट इज़ अ gerund, लुक्स लाइक ए वर्ब बट वर्किंग एज अ noun. एंड अब आपको उसकी प्लेस को डिसाइड करना है कि ये कहाँ आ रहा है. और ये तो बहुत ईजी है कि बिकॉज इट कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो ये क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बन जाएगा. Sorry, here cycling will be the subject of a sentence, okay, because it is coming at the place of the subject. तो मैंने आपको लिख दिया है written how you are going to solve this exercise. cycling लिख के आप उसको subject of a sentence mention कर देंगे. Now come to number 2. What is number 2? I like swimming very much. अब आप देख लीजिए what is the actual verb here. Like है, I is the subject, this is a simple sentence, and what swimming is, ये swimming क्या बन रहा है, because it is coming after the verb और transitive verb के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका object होगा. और लेकिन क्या किसका object होगा, it will not be object of a preposition, it will be object of a verb. Okay, in this way you will solve this exercise. Now we have a next exercise, exercise C. Say exercise, it is exercise B, it is ये misprinting हुई भी है. Say which of the words in bold are gerund and which are present participle. अब यहाँ पर आपको एक jumbled exercise दी है जिसमें आपको identify करना है कि कौन as a noun वर्क कर रहा है, कौन as a adjective, या क्योंकि participles में जब हम participles की बात करते हैं तो या तो as a verb होंगे या फिर as an adjective होंगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो आपको देखना ये है कि आपको ये किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वी लाइक वॉचिंग शाइनिंग स्टार्स एट नाइट. तो हेयर वॉट सबसे पहले हम एनालाइज कर लें ताकि इट विल बी ईजी फॉर अस. वी इज़ द सब्जेक्ट, लाइक इज द लाइक वॉचिंग शाइनिंग स्टार एट नाइट प्रेडिकेट है. लाइक इज़ अ फाइनाइट वर्ब बिकॉज रिप्रेजेंटिंग द टेंस, सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, लाइक वॉचिंग क्या है, किस तरह पता चलेगा कि ये जेरेंट है या ये पार्टिसिपल है. आप लाइक के व्हाट का आंसर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेरेंट है या पार्टिसिपल है. सो व्हाट वॉचिंग इज लाइक व्हाट वॉचिंग. सो वॉचिंग इज द जेरेंट. एंड व्हाट शाइनिंग हियर, शाइनिंग भी है यहाँ पर एक साथ, लेकिन इट बिकॉज शाइनिंग टेल्स द क्वालिटी ऑफ द स्टार्स, इट क्वालिफाइज नाउन. नाउन क्या है यहाँ पर, स्टार्स है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है. तो शाइनिंग क्या हो जाएगा आपका पार्टिसिपल. लेकिन कैसा पार्टिसिपल है ये, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, तो हाउ यू विल राइट इट नाउ. What is the second sentence? He is afraid of driving, but driving is essential to qualify the entry test of driving license. अब यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग का वर्ड जो है वो हाईलाइटेड है, बोल्ड लेटर्स में है, और दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ हो रहे हैं. अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये इसकी वर्किंग कैसी है. पहले इसको चेक कर लेते हैं एज अ वर्ब. ये वर्ब तो है ही नहीं, ही इज़ एफ्रेड ऑफ ड्राइविंग. यहाँ ड्राइविंग इज़ नॉट अ वर्ब, बट ड्राइविंग इज़ एसेंशियल, ये भी वर्ब नहीं है आपके पास. सो अब जब वर्ब की कैटेगरी से निकल गया तो अब हम उसको चेक कर लेते हैं, एग्जेक्टिव चेक कर लेते हैं. एग्जेक्टिव के लिए हमारे पास वो इसके बाद किसी नाउन का आना ज़रूरी है, और जब नाउन आए तो वो उस नाउन को क्वालिफाई भी करे. नॉट एवरी टाइम इट क्वालिफाइज द नाउन. ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि समटाइम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है. So it is not driving here. It is not a verb or an adjective. ये दो ना verb है ना adjective है. तो अब ये क्या है, what is it? This is gerund. इसको चेक कर लेते हैं कि gerund है भी या नहीं है. He is afraid of driving. मैंने आपको जेरेंट का भी यूज़ बताया कि समटाइम इट इज़ गवर्न बाय अ प्रपोजिशन. तो यहाँ पर आप देख लिए ऑफ जो है वो आपका प्रपोजिशन है, और ऑफ के बाद आपके पास आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो इट विल बी जेरेंट. ठीक है, और इसका प्लेस क्या है, आप प्लेस को भी ज़रा सा रिकैप्चुलेट कर लें कि इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन या इट इज़ गवर्न बाय अ प्रपोजिशन, जो भी कह लें. बट ड्राइविंग इज़ एसेंशियल. अब यहाँ पर सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो रहा है. सेकंड क्लॉज है ड्राइविंग, और यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट ही आ रहा है, दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है. तो ये भी आपका क्या होगा, जो भी चीज़ सब्जेक्ट बन जाए, आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट ऑफ अ नाउन सेंटेंस बन जाए तो वो आपका होता है जेरेंट. तो दिस विल बी जेरेंट. ओके, अगर हम आगे चलें
तो एक और जगह हमें ड्राइविंग मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हेयर ड्राइविंग इज़ क्वालिफाइंग द नाउन लाइसेंस, तो यहाँ पर ये आपका पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, तो हम दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ आवर कंसर्न। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द होल एक्सरसाइज। इसी तरीके से इन द सेम वे यू विल चेक द ING फॉर्म जो है, जो आपकी हाईलाइटेड फॉर्म है, उसको चेक कीजिएगा, अपने क्वेश्चन कीजिएगा, आस्क द क्वेश्चन, व्हाट का आंसर पूछें, विच का आंसर पूछें, एडजेक्टिव है तो फॉर विच, फॉर व्हाट का आंसर पूछें, नाउन है तो व्हाट का और whom का आंसर से पूछें। इसी तरह अगर आपको कोई एक्शन वर्ब नज़र आ रहा है तो फिर आप उसको उसी तरीके से डील करेंगे। ठीक है, ये तो आपकी एक्सरसाइज थी। यू रिमेंबर कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं इन्फिनेटिव पढ़ा रही थी तो आई लेफ्ट एक्सरसाइज A। ओपन पेज नंबर 22, आप 22 पे देयर इज़ एन एक्सरसाइज। Okay, exercise A, read the sentences below and make new sentences by replacing the gerund with infinitive। उस वक्त मैंने इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि you have no idea what gerunds are। तो इस वक्त अब आपको clear है, your concepts are clear, so now we can able to do this exercise, we can able to solve this exercise। So have a look on the sentences। What is the first sentence? First is running on the road is easier than running in a desert। तो यहाँ पर दो जगह जो है हमारे पास जो है वो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करें कि वो जेरंड है भी या नहीं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ING फॉर्म तो हो लेकिन वो जो है वो जेरंड ना हो। और इसको इन्फिनेटिव से किसी क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? एज यू नो दैट कि जेरंड भी नाउन होता है और इन्फिनेटिव भी, लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव? टू इन्फिनेटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि टू इन्फिनेटिव की जो वर्किंग होती है वो भी नाउन होती है। तो सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग नाउन विद नाउन। तो हम नाउन को नाउन से कर रहे हैं, बट द नेम्स आर डिफरेंट। जेरंड है तो उसको इन्फिनेटिव से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास जेरंड है, आप देख लीजिए, येस रनिंग, यहाँ पर भी जेरंड है, और जो उसका दूसरे पार्ट में आ रहा है रनिंग इन अ डेजर्ट, वो भी जेरंड ही है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे इन्फिनेटिव में। कौन से वाले इन्फिनेटिव में? फुल इन्फिनेटिव में, दैट कम्स विद टू, नॉट विदाउट टू। So I have done for you one sentence, to run on the road, running I have changed into to run on the road is easier than to run in a desert। आप चेक भी कर सकते हैं, मीनिंग्स आर सेम। आप इसका भी मीनिंग वही है, जो यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस रीराइट किया है उसका भी वही है, जिसमें मैंने किसको रिप्लेस किया है? आई हैव रिप्लेस जेरंड विद इन्फिनेटिव। So this is your homework, inshallah, hopefully you can do it। Try to do it by yourself। Now I'm going to show you the homework। What is the homework? Your homework is to do exercise A, which page number 22, and exercises A and B which are given on page number 26 and 27 in your book। So hopefully you can do it easily, inshallah। Till then we will meet you in the next class। Till then, stay home, stay safe। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh।